بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام، میں نے قرآن عظیم کی ایک مختصر آیات مبارکہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث مبارک کی تلاوت کی. ان دونوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے اور یہ حکم ہے کہ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار سے محبت کروں اور میرا پروردگار مجھ سے محبت کرے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسان سا قانون ارشاد فرمایا ہے، اور وہ آسان قانون اور کھلیا یہ ہے کہ جو مسلمان قرب الہی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب اختیار کرے، اور جو آدمی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقت میں محبت اختیار کرے گا تو یہ محبت رسول در حقیقت محبت الہی ہے. اور یہ حکم ارشاد فرمایا ہے دوسری جگہ: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمان برداری کی تو در حقیقت اس آدمی نے اللہ کے حکم کی فرمان برداری کی. اور آج کل کے دور میں دنیا اپنے آپ کو ماڈریٹ سمجھتے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں یہ دعوے کرتے ہیں کہ میں پروردگار کو تو مانتا ہوں اور اس کے ساتھ محبت بھی کرتا ہوں، میرے اور رب کے درمیان کسی کی واسطے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ میرے تک پہنچنے کے لیے، میرے محبت کے دعویٰ کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے میرے محبوب کے ساتھ تمہارا واسطہ ہوگا، تمہاری محبت ہوگی، تمہاری لگاؤ ہوگی، تب جا کے تم میرے پاس آ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ آپ رب کے ربوبیت پر تو ایمان رکھے اور درمیان میں رسول کی رسالت کو آپ پائمال کریں یا اس کو چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کا قانون اور دستور نہیں ہے، اور نہیں ایمان کامل ہے کہ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ایسے ایمان کے ساتھ زندگی گزاروں، ایسے ایمان کے ساتھ مجھے موت آئے، ایسے ایمان کے ساتھ حشر میں میری اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جس میں میری فلاح اور کامیابی ہو، تو اس ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اور یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ایک قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے نقش قدم پر چلو، مجھے مانو، مجھے پہچانو، میرے احکامات پر عمل کرو، میرے بتائے ہوئے اعمال کو اختیار کرو، جہاں میں نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے بعد میں رکھو، پہلے یہ حکم سنو، وما آتاکم الرسول، جو میرا پیغمبر تمہیں پیش کرتا ہے، فخذوہ، اس پر عمل اختیار کرو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے تمہیں روکتے ہو، منع کرتے ہیں، فانتہوا، اس سے منع ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر اپنی مرضی اختیار کی، رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کیا، جہاں سے میرے محبوب نے منع کیا اس راستے سے واپس نہ آئے، تو ضرور یہ بات سن لو کہ ناکام ہو جاؤ گے۔ کامیابی کی راز یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پڑھنا ہے، سیرت کا سمجھنا ہے، سیرت پر عمل کرنا ہے، جو بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہے، جس سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تب جا کے یہ کامیابی کی سرٹیفکیٹ ہے۔ اور آپ دیکھیں تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے پوری زندگی معمولی چیزوں پر، یعنی واقعات، جب ہم سیرت صحابہ پڑھتے ہیں اس میں بہت معمولی واقعات ہیں جن کا شریعت کے ساتھ دور تک کبھی کوئی واسطہ نہیں، معاشرے کے ساتھ اس کا واسطہ ہے، لیکن ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب حضور کی عادات کو، جب حضور کے اعمال کو انہوں نے پریکٹیکلی طور پر دیکھا ہے، تو صحابہ کرام نے اس پر اپنے لیے عمل کرنا یہ لازم قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کدو کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، کدو کو بالکل نہیں کھاتا تھا، کدو کو سالن نہیں سمجھتا تھا، لیکن ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کی بڑی تعریف بھی کی، بڑے شوق کے ساتھ کھا لیا، اور زندگی کے آخری دم تک حضرت انس کو کدو کے ساتھ عشق ہو گیا۔ ابھی کدو تو کھانے والی چیز ہے، شریعت میں اگر آج بھی کوئی نہ کھائے تو یہ محبت رسول کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ کوئی نافرمانی نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام اتنے عاشق تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پیارے حبیب کو، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کے ساتھ محبت کرتے دیکھا، پھر ان کو یہ ذہن نہیں آیا کہ پوری زندگی کدو سے نفرت کرے یا کدو بنا ہوا ہو اور وہ نہ کھا کے چھوڑ سکے، ایسا نہیں ہو سکا۔
इस वजह से आज जो आयत मुबारका हमने तिलावत की, इसका डिमांड ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलकर खुदा तक पहुंचने की कोशिश करें। और अगर हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे तो वो और रास्ते कहीं और पर जाके मिलेंगे। ये हमारे लिए हुक्म ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से वो आदमी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता, ऐसा नो कि आप ये सारी बातों की निस्बत मेरी तरफ करें। मैं आपको कुरान और हदीस बताऊंगा। पहली जो आयत बताई वो अल्लाह का कौल है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है। फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से एक आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक, हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही, जब तक उस आदमी को मेरे जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत अपनी बाप से भी ज्यादा न हो। समझ आ गई? अपने वालिदैन से भी जिसकी मोहब्बत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, उसकी सीरत, उसकी सूरत, उसकी सुन्नत, उसके कौल, उसके फेल, उसकी जिंदगी के साथ न हो, ये आदमी अपने आप को कामिल मोमिन नहीं कह सकता। और आगे इरशाद फरमाते हैं, मैं वालिदिही व वलदिही, और सिर्फ वालिदैन नहीं, अपने बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत अगर किसी मेरे उम्मती का मेरे साथ न हो तो ये मेरा उम्मती कामिल मोमिन नहीं हो सकता। अभी इन दो जुजियात पर हम गौर करें कि मेरे दिल में मेरे वालिदैन की कितनी मोहब्बत है, और फिर उसका हम तकाबुल करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और मेरे वालिदैन की मोहब्बत, इन दोनों को सामने रखें, मेरे दिल में मोहब्बत किसकी ज्यादा है। एक दूसरी बात, एक साइड पर मेरे बच्चे हैं, बीवी है, दूसरे साइड पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सरदार दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में किसकी मोहब्बत ज्यादा है? हम सब ये कहेंगे कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं अपने आप से पहले और फिर आपसे, कि कितने सुन्नतों को हम रोज अपने पांव तले रोनते हैं? कभी फिक्र हुई है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मैं अपने आप को आशिक समझता हूं, ये उसके सुन्नतों के ऊपर पांव रख के आगे गुजरता हूं, कभी मैंने अपने बच्चे के ऊपर पांव रखा है? कभी उसके सर दर्द को बर्दाश्त किया है? कभी उसके बुखार को बर्दाश्त किया है? कभी उसके किसी कमजोर कपड़े को बर्दाश्त किया है? कभी उसके किसी कमजोर जूते को बर्दाश्त किया है? ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेशुमार सुन्नतों के ऊपर मैं और मेरा कबीला और खानदान और कुब्बा, मेरे औलाद, मेरी बीवी, बच्चे, ये गुजर जाते हैं, मैं देखता हूं, मुझे तो टस से बस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इस मोहब्बत में मैं धोखे में पड़ा हुआ हूं। ये मोहब्बत मेरा हकीकी मोहब्बत नहीं है। अगर हकीकी मोहब्बत होता तो जितनी मेरे बच्चे की बुखार से उसको बुखार टेम्परेचर थर्मामीटर बता रहा है कि इसको 100 टेम्परेचर है, लेकिन मेरा फेस बता रहा है कि बच्चे को 100 टेम्परेचर है, अवल वालिद को 105 का टेम्परेचर है, इसको इतना स्पीड लगा हुआ है, कभी एक हॉस्पिटल में भाग के ले जाता है, कभी इधर भाग के ले जाता है, कभी उधर भाग के ले जाता है। बुखार तो बच्चे को है, बाप को किया हुआ, बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी सुन्नतों की टेम्परेचर की वजह से कि हमारे आज सुन्नतों को, मैं अगर ये कहूं कि हमारे नबी के सुन्नतों को आग लग चुकी है, मिसवाक नहीं इस्तेमाल हो रहा है, नजरों की हिफाजत नहीं है, दाढ़ी की हिफाजत नहीं है, अमामे खत्म हो गए, लिबास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्म हो गया, खाना पीना हमारा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरस पर नहीं है, जिंदगी का अंदरूनी घर के अंदर बीवी बच्चों के साथ हमारा रवैया अपने महबूब के तरीके पर नहीं है,
हमारा बाजार उस तरह नहीं है, हमारी मसाजिद उस तरह नहीं है, तो हम अपने इश्क में धोखे में पड़े हुए हैं। आशिक तो हम है, इससे कोई ये दावा किसी का झूठा नहीं है, लेकिन इस इश्क के दावे में हम धोखे में पड़े हैं। और जब हम इश्क का दावा करते हैं अपने नबी के साथ, तो ये दो चीजें अपने सामने रखें कि मेरे बाप वालिदैन के साथ मोहब्बत, मेरे बच्चों के साथ मोहब्बत और रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत बराबर है। अगर बराबर है तो फिर भी ये इश्क कमाल की इश्क नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज बराबर का इस्तेमाल नहीं किया है। हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से जब तक मेरे जात के साथ, मेरे सुन्नतों के साथ, मेरे सीरत और सूरत के साथ मोहब्बत जब इनसे ज्यादा न हो, तब तक आप कामिल मोमिन नहीं हो सकते। हम तो अभी बराबर भी नहीं हुए, अभी तो हमारा सफर का आगाज है। हमने चल के बराबर तक पहुंचना है, फिर वालिदैन और बच्चों को पीछे छोड़ना है, रसूलुल्लाह को आगे रखना है, उस सुन्नतों पर अमल करना है। और ये तारीख गवाह है। हजरत उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके जा रहे थे, तो हजरत उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना के मेन गेट पर तलवार लिए खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए, अपना बाप आया, जिस बाप से उबैदुल्लाह बिन जर्राह पैदा हुए थे, तो उसको मदीने के मेन गेट पर रोक दिया और कहा कि आप यहां से आगे नहीं जा सकते। उसने कहा, बेटा मैं आपका बाप हूं, मैं मुसलमान हूं, मुझे जाने दे। उसने कहा, आप नहीं जा सकते हैं। मेरे सामने मुझे याद है कि बदर के मौका पर आपने मुसलमानों के मुकाबले में अपने मोहब्बत का इजहार कुफ्फार के साथ जाहिर किया था। तब तक आप इस मेन गेट पर खड़े रहेंगे जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ नहीं लेकर आते और आपके लिए कोई और नया हुक्म सादिर नहीं फरमाते। तब तक या तो आपका सर में कलम करूंगा या आप इस गेट से गुजर सकते हैं। किसको बताया? अपने बाप को बताया। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के मेन गेट पर पहुंच गए, तो अब्दुल्लाह इब्न जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाप ने इस्तिफसार किया कि हुजूर मुझे ये जाने नहीं देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके फर्जंद अर्जुमन से पूछा कि अपने बाप को क्यों आगे जाने की इजाजत नहीं देते? तो उसने फरमाया कि इसने बदर के मौका पर कुफ्फार के साथ मोहब्बत का इजहार किया था, साथ नहीं दिया था, तलवार नहीं उठाया था, हथियार नहीं दिया था, उनकी तरफ से लड़े नहीं है, लेकिन सिर्फ मोहब्बत का इजहार किया था। इस वजह से मैं इसको आगे नहीं जाने दूंगा तब तक जब तक आप हुक्म नहीं देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन थे, बड़े अच्छे अंदाज में फरमाया कि इंसान है, कभी कोताही हो सकती है। आज मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, किसको जाने दे, ये मेरा सहाबी है, ये मुसलमान है, तुम्हारा बाप है, मैं हुक्म देता हूँ, जाने दे। तो उसने फरमाया, ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म न देते तो सारी जिंदगी में मैं यहाँ इस मेन गेट पर चौकीदारी करता, इस आदमी को मदीना नहीं आने देता। ये क्या थी? ये इश्क रसूल था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। एक और सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सामने बैठ गए। जब बैठ गए ऐसे खेदा की शक्ल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उसकी उंगलियों के ऊपर पड़ी। उस सहाबी ने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूं ही नजर पड़ी, उसने हाथ बढ़ाया और अंगूठी निकालकर दूर फेंक दिया। जब फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए सोने का पहनना ये हराम है, ये खवातीन के लिए इसकी इजाजत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजलिस बर्खास्त हुआ, चले गए, तो बाकी साथियों सहाबे किराम ने फरमाया इस अंगूठी वाले को कि जाके अपनी अंगूठी उठा लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
पहनने से मना किया है, इसको जाके मार्केट में बेच दो, कोई और चीज आप ले लेंगे। सहाबा की इश्क का अंदाज देखो। उस सहाबी ने फरमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी को मेरे उंगली से निकाला है और दूर फेंका है, मैं क़यामत तक इस अंगूठी को दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा। ये मेरे महबूब की नापसंदीदा चीज है, मैं उस चीज को हाथ नहीं लगा सकता। मेरे भाइयों, हम उस पैगंबर के उम्मती है और हम उस नबी के आशिक होने के दावे भी कर रहे हैं। बस मैं तफसील में नहीं जाता कि हमने क्या करना है, किया है और क्या होगा, कैसा होगा। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं, सीरत तय्यबा से वाकिफ है। उलमाए किराम ने रबीउल अव्वल के महीने में सीरत का अक्सर हिस्सा हमारे सामने बयान कर दिया। अभी बाकी बात जो रहती है वो ये है कि हमने इस पर अमल कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक ले जाना है। आया इस दर्जे तक हम पहुंच सकते हैं? जरूर पहुंच सकते हैं कि अगर नबी ने अंगूठी निकाल कर बाहर फेंकी है, ये 1000 की है या 10,000 की है या करोड़ की है, लेकिन नबी का नापसंदीदा अमल है, मुझे भी ये नापसंदीदा होना चाहिए। जो नबी की पसंदीदा अमल है वो मेरे प्यारे हबीब का पसंदीदा है, बस मुझे भी उससे मोहब्बत होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये हदीस सामने रखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक ये अपने वालिदैन, अपने बच्चों और वन्नास अजमाइन कहा, तमाम दुनिया के इंसानों से ज्यादा मोहब्बत जब तक मेरे साथ न हो, ये आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता। बस हमारे ईमान के लिए ये एक आला मिल गया। अगर आपने अपने ईमान को चेक करना है, बस सामने ये पूरी दुनिया को भी रखे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखे। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में ज्यादा है, पूरी दुनिया की मोहब्बत नहीं है, आपका ईमान कामिल है। और अगर पैसों की मोहब्बत ज्यादा है, बीवी की मोहब्बत ज्यादा है, बच्चों की मोहब्बत ज्यादा है, बैंक बैलेंस है, स्कूटी है, बंगला है, गाड़ी है, कारोबार है, इनकी मोहब्बत है और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में नहीं है, फिर अपने ऊपर ईमान के ऊपर मेहनत की जरूरत है। और जब मेहनत करेंगे तब कामयाबी का राज बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की तौफीक